Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Now here we discuss space curves. The simple definition of space curves are, for example, this is a space curve. If you have a point P of xyz, means xyz are the coordinate of that point P. If that point P moves in space, then the tracing out of that point is called space curve. कोई भी पॉइंट अगर स्पेस में मूव कर रहा है तो ये पॉइंट मूव करता है पीछे जो ट्रेस छोड़ता है, जो उसकी ट्रेसिंग है, डेट इज कॉल्ड स्पेस कर्व. फॉर एग्जांपल, not in detail, if the coordinate x y z of the point P in space are described by x is equal to x of t, y is equal to y of t, z is equal to z of t. Remember it, x, y, z are the continuous function of scalar variable t. When t varies, then point P moves in a space. Then when point P moves in a space, then you get some path by the tracing out of that point is called the space curve. This is a simple definition of space curve. You learn only the definition of the space curve. That's very important for quiz point of view. Now, other way, you know also that if this point P on the curve, then the position vector of the point from the origin always represented by r. And if you want to write r in component form, that must be equal to r is equal to xi plus yj plus zk, and you can also write this one as x of t, y of t, and z of t. After this discussion, now the example number 6 is determine the space curve represented by the vector function. मतलब आपने डिटर्मिन करना है स्पेस कर्व जो इस वेक्टर फंक्शन से डिटर्मिन हो रहा है, जो इस वेक्टर फंक्शन से बन रहा है, और उसकी लिमिट ये है. मीन्स आपके पास r है, r ऑफ t इज इक्वल टू a cos t i प्लस a sin t j, और ये लिमिट है. लिमिट से पता चल रहा है कोई क्लोज पाथ है 0 से 2 पाई. तो बताएं इस पाथ से, इस फंक्शन से, इस ये जो वेक्टर फंक्शन है, इससे कौन सा आपके पास कर्व आता है, कौन सा आपके पास स्पेस कर्व आता है. स्पेस कर्व को करने से पहले जैसे ये देखो, आपको ये गिवन है, ये मैंने खुद लिख के बताया आपको, ये आपको गिवन है विद लिमिट्स है. आपको मालूम है इन द अबव डेफिनेशन आर ऑलवेज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के एंड इज इक्वल टू ए कॉज ऑफ टी आई प्लस ए साइन ऑफ टी जे प्लस जीरो के नहीं था, मैंने खुद से जीरो के लिख दिया. नाउ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जी ऑन बोथ साइड्स, देन यू गेट एक्स इज इक्वल टू ए cos t, y is equal to a sin t, z is equal to 0. Now scaling and adding these two equations, then you get this one, and cos square plus sin square is 1. So finally you get the x square plus y square is equal to a square. This means this shows that this is the equation of the circle with radius a and center 0 0. When you put t 0, you know that t limit is 0 to 2 pi. This is given. When t is equal to 0, what is x? When t is 0, then a cos of 0 is a. When t is 0, y is equal to 0 because sin 0 is 0, or z already 0. Means when t is 0, then x a, y 0, z 0, you get this point. And when t is equal to 2 pi, then you get x is equal to x is equal to a, y 0, is z is equal to 0, you get again this point. Means initial and terminate point is the same. So with the in this example we see that the our required space curve is the circle with the center 0 0, radius a, and remember it, initial and terminate point also same, and the path is just like this one, right? ये आपने इसकी एग्जाम्पल भी कर ली स्पेस कर्व की. अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ गया है तो आप कर सकते हैं. अब है थ्योरम 3.4. अ स्पेस कर्व सी इज डिफाइंड बाय द पैरामीट्रिक इक्वेशंस. कोई भी स्पेस कर्व है उसे आप इस तरह डिफाइन कर, टी नहीं है, इस तरह आप डिफाइन कर सकते हैं. आप टी नहीं है, अब एस है, और एस क्या है, उस पाथ पे कर्व का, उस पॉइंट का, उस कर्व के किसी पॉइंट से डिस्टेंस, वो एस है. ये फिगर भी वहाँ पे बनी हुई है, ठीक है. एक्चुअली वो इस थ्योरम में क्या कहता है, आ स्पेस कर्व इज डिफाइंड बाय द पैरामीट्रिक इक्वेशंस दिस वन, एस इज द आर्क लेंथ measured from the fixed point on C. If r is the position vector of any point on C, then show that dr by ds, not dr by dt,
जाहिर है डेरिवेटिव लिया तो वेक्टर कोई टेंजेंट ही होगा, लेकिन वो कह रहा है वो टेंजेंट यूनिट टेंजेंट होगा, ये आपने प्रूव करना है। ठीक है, मीन्स ये आपके पास फिगर है, ये कोई पॉइंट पी है, अगर आपने इस पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इस आर्क लेंथ लिया तो टेंजेंट तो होगा, तो प्रूव करें कि वो टेंजेंट यूनिट टेंजेंट होगा। अब हम इसके प्रूव में आ जाते हैं जी। आपके पास आर गिवन है, आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के, एक्स वाई जी जो है वो एस का फंक्शन है, तो डेरिवेटिव मैंने एस के रिस्पेक्ट ही लिया, ये आ गया। अब ये है टेंजेंट इज अ वेक्टर टेंजेंट टू द कर्व, हमें पता है डेरिवेटिव ऑलवेज रिप्रेजेंट द टेंजेंट। अब प्रूव करो कि ये टेंजेंट यूनिट है, उसके लिए इसकी मैग्नीट्यूड लो, अगर वो 1 आ गई तो ये यूनिट है, आपका प्रूव हो जाएगा। उसके लिए मैंने इसकी मैग्नीट्यूड ली, तो मैग्नीट्यूड देखें इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे डी एक्स होल स्केयर डी एस स्केयर, यही आएगा, प्लस जे टर्म स्केयर प्लस के टर्म स्केयर। अब इसमें देखें इसके बाद क्या आ जाएगा, ऊपर ये आ जाएगा, नीचे रिमेंबर इट डी एक्स स्केयर प्लस डी वाई स्केयर प्लस जी स्केयर ऑलवेज इक्वल टू डी एस स्केयर। तो वो जब आपने लगा दिया, ये देखें ये सारी टर्म फ्रॉम कैलकुलस, ये आपने कैलकुलस में पढ़ा हुआ है, तो जब ये उसमें पुट कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जब सेम हो जाएगा। तो मीन्स जब 1 आ गया तो आपका तो प्रूव हो गया कि ये वाकई यूनिट टेंजेंट है। उसके बाद एक उसने रिजल्ट नोट में किया, ये अक्सर स्टूडेंट्स पूछ लेते हैं, आपको पता है वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब आर जो है अगर डिस्टेंस से आप कर दें इसको डिवाइड चेन रूल के अकॉर्डिंग, अगर आप इस तरह लिख दें तो डी एस ओवर डी टी जो है ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ये होता है स्पीड, स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं वी से। ठीक है, और ये डी आर बाई डी एस अभी आपने ऊपर प्रूव किया कि यूनिट टेंजेंट है, ऐसे लिख देंगे, और इस डी एस बाई डी टी को मैं वी लिख दूंगी, ये जो वी वेक्टर के बगैर है ये स्पीड है, तो वी आ गया डी एस बाई डी टी। इसके बाद वो बताएगा कि वी जब है ना वो स्पीड इसको बोला जाता है। ठीक है, दस वी सी डेट द मैग्नीट्यूड ऑफ वी, ये वी जो है वो उसकी मैग्नीट्यूड है ना विदाउट वेक्टर, इज कॉल्ड द स्पीड एंड इज रिटर्न एज। ठीक है, अब आप इसकी मैग्नीट्यूड अगर लें, मीन्स कि मैंने वी को उसकी मैग्नीट्यूड कहा है ना, तो आप उसके वेक्टर ए तो बराबर है डी आर बाई डी टी के। ठीक है, तो उसकी मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं, v को आप डी आर बाई डी टी की मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं, बिकॉज डी आर बाई डी टी इज डी आर बाई डी टी क्या है, वो वेलोसिटी वेक्टर है। ठीक है, उसकी मैंने मैग्नीट्यूड लिख दी तो वो भी सेम है। इसके बाद एक और एग्जांपल आ गई, फाइंड द यूनिट वेक्टर टू द कर्व रिप्रेजेंटेड बाय। अब आपने यूनिट वेक्टर निकालना है इस कर्व के ऊपर, अब वो एस के रिस्पेक्ट नहीं है, वो टी है, तो आपने यूनिट वेक्टर निकालना है ना, यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालना है। तो आप क्या करोगे, पहले टेंजेंट वेक्टर तो निकाल लो। तो इसका टेंजेंट वेक्टर आर का विद रिस्पेक्ट टू टी, आर डिस्प्लेसमेंट होता है, उसे वेलोसिटी वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी इक्वल टू डी आर बाई डी टी, ये आ गया टेंजेंट होता है, यहाँ वेलोसिटी वेक्टर जो है वो टेंजेंट है, बिकॉज डी आर बाई डी टी रिप्रेजेंट द टेंजेंट, तो ये आ जाता है जब आप निकालते हैं। अब आप इसकी मैग्नीट्यूड ले लें, क्योंकि आपने यूनिट टेंजेंट निकालना है, तो मैग्नीट्यूड आपके पास ये आ जाती है। अब आपने जब यूनिट टेंजेंट निकालना है तो आपको पता है वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास यूनिट टेंजेंट आ गया, ये यूनिट टेंजेंट आ गया। लेकिन उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि वो यूनिट टेंजेंट एट टी इज इक्वल टू 1 पे निकाल लो, तो मैंने क्या किया, उसमें टी की जगह 1 लगा दिया, तो यूनिट टेंजेंट एट दैट पॉइंट भी आ गया। तो मैंने आपको ये एग्जाम्पल बता दी, आप इस एग्जाम्पल को गौर से देख लें और गौर से समझ लीजिएगा, फिर आप इसको वहाँ से कीजिएगा, नोट्स आपके पास हैं। हाँ जी बेटा, ये अब छोटे छोटे से थ्योरम है। थ्योरम 3.5, प्रूव दैट द वेक्टर डिफाइंड बाय, ये कौन सा वेक्टर है, ये है यूनिट टेंजेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस। कह रहा प्रूव करो कि ये जो वेक्टर है ना ये नॉर्मल है किस पे, यूनिट टेंजेंट वेक्टर पे, टी कैप पे। अगर मैं प्रूव करना चाहती हूँ कि ये जो है मतलब टेंजेंट है, नॉर्मल है इस टी कैप पे, तो मैं कैसे प्रूव करूँगी। अगर मैं प्रूव करना चाहती हूँ ये दोनों नॉर्मल है, तो मुझे इनका डॉट ज़ीरो प्रूव करना होगा। आपको पता है व्हेन टू वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो, व्हेन द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ज़ीरो देन दोज टू वेक्टर्स मस्ट बी परपेंडिकुलर। तो अगर आपने प्रूव करना है कि ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो आप प्रूव कर देंगे कि इनका डॉट ज़ीरो है। अब उसने कहा है कि ये टी कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है, और फॉर टी कैप इज़ अ यूनिट टेंजेंट वेक्टर, देयरफॉर जो यूनिट टेंजेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमेशा 1 होता है। अब आपको डेरिवेटिव भी चाहिए, आप एस के रिस्पेक्ट चाहिए, आप इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस ले लें। ठीक है, बोथ साइड्स पे इसका तो 0 आ जाएगा। जब आप इसका लेंगे तो डी टी बाई डी एस डॉट टी कैप प्लस टी कैप एज इट इज डॉट डी
डी टी ओवर डी एस। आपको पता है डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, आप इसको चेंज करके डी टी ओवर डी एस डॉट टी लिख सकते हैं। फिर ऑर्डर चेंज कर दें इसका तो ये 2 टाइम्स ये हो जाएगा। 2 तो 0 हो नहीं सकता, आपको पता है 2 इज 0 इज वेरी नॉनसेंस। Must be if the product of two terms 0, then one term must be 0, but 2 is not 0, because if you say 2 is equal to 0, that's very nonsense. 2 is a definite number, so means this one is 0. When this one is 0, then अब देखें वो जो डी टी बाई डी एस था वो टी कैप पे उसका डॉट लिया तो 0 आ गया, तो इससे तो प्रूव हो गया कि ये दोनों क्या हैं, ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। यही आपने प्रूव करना था।